ये बोलते थे कि कांग्रेस की सरकार थी 70 साल में कुछ नहीं किया। अच्छी बात है, हमने कुछ नहीं किया भाई, उनको मौका दे दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये जो रेलवे स्टेशन बनाए, रेलवे स्टेशन को जो बेच रहे हो, क्या तुम्हारे दादाजी ने बनाया था? ये हवाई अड्डा किसान नेता चरण सिंह के नाम से लखनऊ में जो एयरपोर्ट है, वो बिक गया अडानी के नाम से। ये तुम्हारे नाना जी ने बनाया था। रेलवे स्टेशन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, तेल के खदान बेच दिए, लोहे के खदान बेच दिए, स्टील प्लांट बेच दिए। अब नजर है किसानों के जमीन पर, आपकी जमीन, आप अपनी जमीन बचा लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी जमीन बचा लीजिए। शुक्र करिए कि पिछली सरकारों ने कुछ बनाया, आपने तो कुछ बनाया नहीं है। शुक्र करिए कि कुछ बनाया, वरना आप बेचते क्या? पूरे देश को बेच डाला, बड़े बड़े उद्योग बेच डाले। किसने बनाए थे वो उद्योग? किसके लिए बने थे वो उद्योग? जनता ने बनाए थे, वो जनता के उद्योग थे, और आपने उनको बेच डाला। जीडीपी के आंकड़े बता रहे हैं कि देश नाजुक स्थिति में है। 7.3% नकारात्मक वृद्धि के साथ मोदी सरकार ने इतिहास रचा है। वैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सितंबर 2019 में ही जो कहा वो सच हो रहा है। उन्होंने कहा था कि मैन मेड ब्लंडर्स, यानी मोदी सरकार की नोटबंदी और जीएसटी और कई फैसले इसके लिए जिम्मेदार हैं। सुनिए क्या कहा था उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सितंबर 2019 में। The state of the economy today is deeply worrying. The last quarter's GDP growth rate of 5% signals that we are in the midst of a prolonged slowdown. India has the potential to grow at a much faster rate, but all-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. It is particularly distressing that the manufacturing sector's growth is tottering at 0.6%. This makes it very clear that our economy has not yet recovered from the man-made blunders of demonetization and a hastily implemented GST. Domestic demand is depressed and consumption growth is at an 18-month low. Nominal GDP growth is at 15-year low. There is a gaping hole in tax revenues. Tax buoyancy remains elusive as businessmen, small and big, are hounded and tax terrorism continues unabated. Investor sentiment are in doldrum. These are not the foundations for economic recovery. The Modi government's policies are resulted in massive jobless growth. More than 3.5 lakh jobs have been lost in the automobile sector alone. There will similarly be large-scale job losses in the informal sector, hurting our most vulnerable workers. Rural India is in
terrible shape. Our farmers are not receiving adequate prices and rural incomes have declined. The low inflation rate that the Modi government likes to showcase comes at the cost of our farmers and their income by inflicting misery on over 50% of India's population. Institutions are under attack and their autonomy is being eroded. The resilience of the Reserve Bank will be tested after its record transfer of rupees 1.76 lakh crores to the government, which claims that it does not have a plan on what it will do with this windfall. In addition, the credibility of India's data has come under question under this government. Budget announcements and rollbacks have shaken the confidence of international investors. India has not been able to increase the exports to take advantage of opportunities that have arisen in global trade due to geopolitical realignment. Such is the state of economic management under the Modi government. Our youth, our farmers and our farm workers, entrepreneurs and the marginalized sections deserve better. India cannot afford to continue down this path. Therefore, I urge the government to put aside vendetta politics and reach out to all sane voices and thinking mind to steer our economy out of this man-made crisis. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2014 में कहा था कि देश के लिए नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री होना डिजास्टर होगा। आज पिछले 40 साल में जो नहीं हुआ वो आज गिरावट देश की अर्थव्यवस्था में हुआ है, यानी -7.5% GDP। Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. आज इतिहास में पहली बार पेट्रोल 105 रुपए लीटर है और डीजल 98 रुपए। तेल की बढ़ती कीमतों से देश परेशान है, पर सरकार के मुंह पर ताले लगे हैं। अपूर्व के बयान प्रधानमंत्री जी का ही सुन लेते हैं। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। आज एलपीजी यानी गैस 800 रुपए पार, पेट्रोल 100 रुपए पार, कुकिंग ऑयल 200 रुपए पार। यह है आज की सरकार। नौकरियां गईं, बेरोजगारियां बढ़ी, किसान की आय घटी, कई लोगों की जानें चली गईं, आंकड़ों की बाजीगरी का पर्दाफाश हो गया, अर्थव्यवस्था सबसे बुरे दौर में है। सबब राम भरोसे है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि 1991 में 30 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की थी और देश की आर्थिक नीति के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया था। पिछले 3 दशकों के दौरान विभिन्न सरकारों ने इस मार्ग का अनुसरण किया और देश की अर्थव्यवस्था 3000 अरब डॉलर की हो गई और यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब बात मंदी युग की। मोदी के नेतृत्व में बेरोजगारी लगातार बढ़ी। मोदी के शासन में काम करने वाले भारतीयों की कुल संख्या 2013 में 44 करोड़ से घटकर 2016 में 41 करोड़ और 2017 में 40 करोड़ और फिर 2021 में 38 करोड़ हो गई। नतीजतन
मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय मध्यम वर्ग का विकास थम गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि 1991 में यानी 30 साल पहले अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि में करीब 30 करोड़ भारतीय नागरिक गरीबी से बाहर निकले और करोड़ों नई नौकरियों का सृजन हुआ। सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ने से स्वतंत्र उपक्रमों की भावना की शुरुआत हुई, जिसका परिणाम यह है कि भारत में कई विश्व स्तरीय कंपनियां अस्तित्व में आई और भारत कई क्षेत्रों में वैश्विक ताकत बनकर उभरा। 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत उस आर्थिक संकट की वजह से हुई थी जिसने हमारे देश को घेर रखा था, लेकिन यह सिर्फ संकट प्रबंधन तक सीमित नहीं था। समृद्धि की इच्छा, अपनी क्षमताओं में विश्वास, अर्थव्यवस्था पर सरकार के नियंत्रण को छोड़ने के भरोसे की बुनियाद पर भारत के आर्थिक सुधारों की इमारत खड़ी हुई। अब बात मंदी युग की। मोदी सरकार में यात्री वाहनों की बिक्री भी बीते करीब एक दशक से स्थिर ही है। 2012 में 27 लाख वाहन बिके थे, जो 2019 और 2020 में भी 27 लाख ही रहे। दोपहिया वाहनों की बिक्री 2014 में 1.6 करोड़, 2019 में 1.7 करोड़ और 2020 में 1.5 करोड़ पर स्थिर रही। तिपहिया वाहनों की बिक्री 2012 में 5 लाख, 2015 में 5 लाख, 2016 में 5 लाख, 2019 में 6 लाख और 2020 में 2 लाख। कमर्शियल वाहनों की बिक्री 2012 में 7.9 लाख, 2015 में 6 लाख, 2016 में 7 लाख, 2019 में और 2020 में 5.6 लाख रही। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने कांग्रेस में कई साथियों के साथ मिलकर सुधारों की इस प्रक्रिया में भूमिका निभाई। इससे मुझे बहुत खुशी और गर्व की अनुभूति होती है कि पिछले 3 दशकों में हमारे देश ने शानदार आर्थिक प्रगति की, परंतु मैं कोविड के कारण हुई तबाही और करोड़ों नौकरियां जाने से बेहद दुखी हूं। स्वास्थ्य और शिक्षा के सामाजिक क्षेत्र पीछे छूट गए और यह हमारी आर्थिक प्रगति की गति के साथ नहीं चल पाया। इतनी सारी जिंदगियां और जीविका गई हैं, वो नहीं होना चाहिए था। यह आनंदित और मग्न होने का नहीं, बल्कि आत्ममंथन और विचार करने का समय है। आगे का रास्ता 1991 के संकट की तुलना से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करने की ज़रूरत है ताकि हर भारतीय के लिए स्वास्थ्य और गरिमामयी जीवन सुनिश्चित हो सके। मंदी युग में यानी मोदी सरकार में 8 प्रमुख शहरों अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में आवासीय बिक्री 2012 में 3.3 लाख इकाइयाँ थीं, जो 2019 में 3.2 लाख पर ही स्थिर रहीं। वहीं 2020 में यह 1.5 लाख इकाई तक गिर गई। 2014 में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न सेट आदि का कुल भारतीय बाजार 2020 तक 1,50,000 करोड़ होने का अनुमान था, लेकिन 2019 में यह 76,400 करोड़ रुपए और 2020 में 50,000 करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाया। कुल यात्री यानी रेल और हवाई यात्रा मिलाकर 2012 में 840 करोड़ से गिरकर 2019 में 826 करोड़ हो गए। और ध्यान रहे कि यह महामारी से पहले की बात है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, 1991 में मैंने एक वित्त मंत्री के तौर पर विक्टर ह्यूगो, जो फ्रांसीसी कवि हैं, उनके कथन का उल्लेख किया था कि पृथ्वी पर कोई शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती है जिसका समय आ चुका है। 30 साल बाद एक राष्ट्र के तौर पर हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिका के कवि, की उस कविता को याद रखना है कि हमें अपने वादों को पूरा करने और मीलों का सफ़र तय करने के बाद ही आराम फरमाना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, सब चंगा सी।